টাকার নোটে যেই ফটোটা আছে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সাঁচি স্তূপার ফটো। তো গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমি সোনিয়া, আমার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। তো আমি আজ এসেছি সাঁচিতে। তো আপনাদের আমি কালকে বললাম আমি উজ্জয়ন থেকে খাজুরিয়া যাওয়ার পথে এই সাঁচিতে আজকে স্টে করেছি, বিকজ উজ্জয়ন থেকে সাঁচি প্রায় 550 কিলোমিটার। তো 550 কিলোমিটার অতিক্রম করা আমার একদিনে সম্ভব নয়, সেই কারণে আমি সাঁচিতে স্টে করেছি। তো স্টে করার পর লোকের মুখে আমি শুনেছি এটা হলো সম্রাট অশোকের এখানে কেলা আছে। তো আমি সেই কেলায় আজকে ঘুরবো ও আপনাদেরও ঘুরে দেখাবো। তো দেখুন, এখানে হচ্ছে আমি বুকিং কাউন্টারের সামনে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে বুকিং কাউন্টার। তো বুকিং কাউন্টারেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্রাট অশোকের কারুকার্যের সেই নিদর্শনগুলি আপনাদের হয়তো আমি দেখাবার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন যে সম্রাট অশোক যেখান থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত করেছিল সেই জায়গাটা আমি আপনাদের একটু ঘুরে দেখাবার চেষ্টা করব। এখান থেকেই সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেছিল। সম্রাট অশোকের যে ওয়াইফ ছিলেন তার নাম হলো বিদিশা। তো বিদিশাকে এই অঞ্চলের ভার পুরো সম্রাট অশোক দিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিদিশার বাবা ছিলেন এখানকার বড় ব্যবসায়ী। তো চলুন আপনাদের ঘুরে দেখাই সম্রাট অশোকের সেই সাম্রাজ্য। বুকিং কাউন্টারে এসে গেছি। তো বুকিং কাউন্টারে এসে আমি এখান থেকে দুটো টিকিট কেটে নেব ও টিকিট কাটার পর আমি এখান থেকে যাব মাউন্টেন এবং মিউজিয়ামে। তো ইন্ডিয়ান সিটিজেনদের পার ডেস হচ্ছে 40 টাকা, আর আদার্স কান্ট্রি থেকে যারা আসবেন তাদের হচ্ছে পার হেড 600 টাকা। তো এই দেখুন আমি টিকিট কেটে ফেলেছি। তো এবার আমি যাব ঘুরতে। তো চলুন ঘোরা যাক। সো বন্ধুরা, আমি এন্ট্রি করে ফেলেছি। ওয়েলকাম করেছে বুদ্ধিস্ট মাউন্টেন অ্যান্ড সাঁচি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখান থেকে আমি চলে যাব সোজা। তো ওই দূরে দেখতে পাচ্ছেন অপূর্ব এই জায়গাটা। তো বন্ধুরা, আমি আপনাদের বলে রাখি যে 200 টাকার নোটে আপনারা ফটোটা দেখে থাকেন, সেই নোটের ফটোটা হচ্ছে এই সাঁচিরই ফটোটা। তো আপনারা মিলিয়ে নেবেন। আর এখানকার হিস্ট্রি সম্বন্ধে জানার জন্য আমরা একজন গাইড দাদাকে বুক করে নিয়েছিলাম, যার চার্জ হচ্ছে 300 টাকা। भदौरिया जी नमस्ते, नाम सुरेंद्र सिंह भदौरिया में टूरिस्ट गाइड साची। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9329587021 मेरा कॉन्टैक्ट। এবারে আমরা দাদার মুখে শুনে নেব সেই সাঁচি স্তূপার ইতিহাস। চলুন তবে শুরু করা যাক আজকের এই সাঁচি স্তূপার হিস্ট্রি। स्टार्ट करता हूँ जी मैं अब साची के बारे में। साची में बौद्ध स्तूपा है। स्तूप मीन्स होता है समाधि, और ये सोलिड होता है, होलो नहीं। किसी भी डोम के इनसाइड अंदर जाने का कोई रूट, कोई रास्ता नहीं होता। बनाने का कल्चर अदर रिलीजन में थोड़ा चेंज होता है जी। जैसे अपने हिंदू रिलीजन में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, बॉडी जलाते हैं। बॉडी के जो बोन पीसेस होते हैं उसको अपन रिवर्स में छोड़ देते हैं, मेमोरी में उसका प्लेटफार्म बनाते हैं। जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। इस्लाम में बॉडी को वरी करके प्लेटफार्म बनाते हैं। जैसे एमाइटोम दिल्ली ताज है। बौद्ध धर्म में चेंजेस है। बॉडी जलाएंगे, बोन्स को रिवर्स में नहीं, बोन्स को रखकर डोम बनाते हैं, जिनको स्तूपा कहा जाता है। तो बुद्ध और अशोक में 200 ईयर्स का डिफरेंस है। बुद्ध हुए थे 5 सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट, 2500 ईयर्स पहले, और अशोक को 3 BC 2300 ईयर्स। कितना डिफरेंस? 200 ईयर्स। बुद्ध सांची प्लेस नहीं आया, जो बनाया अशोका ने। बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर है। नॉलेज हुआ बहुत गया। फर्स्ट टीचिंग सारनाथ में, और बुद्ध जी एक्सपायर हो गए कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जिसको कहते हैं परिनिर्माण। बुद्धा एक्सपायर हुआ, उसका बॉडी जलाया। बॉडी का जो बोन पीसेस था उसको 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया, 8 भागों में। 8 स्तूप बनाए गए कुशीनगर। बुद्ध के बोन्स को कवर्ड कराया। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद
3 BC में कलिंग वार हुआ था उड़ीसा में। कलिंगा के बाद अशोक ने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया था। अशोक ने वो 8 स्तूप को ओपन किया। जितना बॉडी का बोन पीसेस था, मिट्टी था, कलेक्ट किया अशोका ने, उनको डिवाइडेड अशोक ने कराए। 84,000 84,000। क्यों? क्योंकि बुद्ध का टीचिंग 84,000 है। 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने। ऑल एशिया, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका, प्रत्येक स्तूप बुद्ध के बोन्स को, मिट्टी को डालकर उसको कवर्ड किया। ओनली मेमोरी के लिए, धर्म प्रचार के लिए। स्तूप बन के अंदर भी बुद्ध जी का बॉडी का स्मॉल पार्ट्स है। बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी है, बाकी बॉडी के पार्ट्स इंडिया। बाकी बॉडी के पार्ट्स इंडिया, कुशीनगर, अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, 2 आंध्र प्रदेश। आंध्रा अमरावती जो कैपिटल हुआ आंध्रा, बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली। परंतु 84,000 में फर्स्ट स्तूप सांची प्लेस। क्यों चॉइस किया? कहाँ? पटना, पाटलिपुत्र, कहाँ? सांची। अशोका का जो फर्स्ट वाइफ था जिसका नेम था विदुषी देवी, विदुषी से हुआ डिस्ट्रिक्ट विदिशा, जो ओनली 6 किलोमीटर सांची से, जो बौद्धिज्म को मानता था। उनका सन एंड डॉटर हुए महेंद्र एंड संघमित्रा। बौद्धिज्म को लेके फर्स्ट टाइम गए थे श्रीलंका धर्म प्रचार के लिए, इसलिए फर्स्ट स्तूप उन्होंने सांची तैयार किया, मेरी वाइफ उसका प्रेयर कर सके। तो अशोका ने बौद्धिज्म का स्टार्ट किया, शुरुआत किया, वो सांची से किया था, जो आज 11 कंट्रीज के अंदर है। तो हम देखेंगे जिस स्तूप का निर्माण अशोक जी ने कराया 3 BC में, ईसा से 300 वर्ष पहले, 2300 ईयर्स पहले। ओरिजिनल स्तूपा है टेराकोटा ब्रिक का, ब्रिक मतलब ईंट का बना हुआ। वो ये डोम हम देख रहे हैं स्तूपा, इसके इनसाइड अंदर साइड है, जो हमको आउटसाइड से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, 2nd सेंचुरी BC सुंग डायनेस्टी आया। सुंगा पीरियड में वो किंग रहे अग्निमित्र सुंग, उन्होंने स्टोन से कवर्ड किया, ये प्लास्टर किया, टॉप पर ट्रिपल अम्ब्रेला, ये रेलिंग बाउंड्री का निर्माण किया, इनको वेदिकाएं कहते हैं। जो प्लास्टर दिखाई दे रहा है बाहर से, जो बाहर से प्लास्टर, वो भी 2nd BC सुंग पीरियड का ही है। अच्छा। परंतु इसका काफी प्लास्टर डैमेज हो गया। हाँ। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ जी? 3 BC से 12th सेंचुरी AD टाइम पीरियड होता है 15 ईयर। बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म सांची, और 12 AD से लेकर 1818 500 ईयर्स फॉरेस्ट में कवर्ड हो गया था। ये मुगल पीरियड है। औरंगजेब से बचा फॉरेस्ट होने के कारण इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर ने 1818 में। टेलर क्या डोम को डिस्कवर करने आया जी? ना, हंटिंग करते आए थे। उन्होंने देखा डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया? ये नॉर्दर्न गेट है, बैक साइड में वेस्टर्न गेट है। वेस्टर्न गेट से लेके साउथ गेट का पूरा पोर्शन स्तूप का डिग किया। अच्छा। डिगिंग करते इनसाइड अंदर गए, देखा सेंट है, इसके अंदर स्टोन के पीसेस हैं, उनको हटाया। देखा स्मॉल टेराकोटा ब्रिक स्तूपा, वो छोड़ के चला गया उस पीरियड में। अच्छा, कुछ नहीं मिला, सोना वगैरह कुछ नहीं मिला उस पीरियड में। इसके 2 गेट वेस्ट और साउथ, 2 गेट गिरकर डैमेज हो गया था। यहाँ आए सर जॉन मार्शल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ जनरल, 1912 एंड 1920। 8 ईयर स्टे किया सांची। साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर करा दिया। उसमें कुछ प्लेन स्टोनों को इस्तेमाल किया गया, वो ओरिजिनल पार्ट इसका नहीं है। जो ओरिजिनल प्लास्टर हम लोग देख रहे हैं, ये मटेरियल कौन सा यूज किया था उस टाइम? खाने का दाल है, जैसे उड़द है। अच्छा, ये वाला प्लास्टर जो है खाने वाला दाल से बनाया गया। जैसे उड़द, मूंग, मसूर, मेथी, जूस निकालेंगे हम उसका। अच्छा। जूस निकालेंगे। ब्रिक मतलब ईंट, उसका पाउडर बनाओ, सुर्की कहा जाता है। दाल का जूस मिक्स कर दो, मिक्स करेंगे लाइम चूना, खाने का गुड़, और बेल जो सेवा को चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि फ्रूट होता है, गम निकलता है, इनको मिक्स किया और ये प्लास्टर किया। अच्छा। सेम मटेरियल आर्कियोलॉजिकल प्रेजेंट टाइम यूज करती है, मालूम एंड रिपेयरिंग को सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया। 1 BC
2100 ईयर्स पहले सातवाहन आए और सतवाहना पीरियड में रूलर थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने गेटों का निर्माण कराया। 4 गेट 4 डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट তো আপনাদেরকে আমি পরপর একটা একটা করে গেট দেখিয়ে দেবো, দেখিয়ে জানিয়ে দেবো এই গেটগুলোর কি কি নাম সমস্ত কিছু গাইড দাদাই আমাদেরকে বলে দেবেন। তো চলুন আবার শোনা যাক ওনার থেকে। 4 गेट हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अभी हम लोग नॉर्दर्न गेट पे खड़े हुए हैं, इसलिए गेट का जो आर्किटेक्चर है साउथ इंडियन स्टाइल है। साउथ इंडियन स्टाइल है। गेट पर रेलिंग पर जो स्टोन यूज किया इस्तेमाल किया वो सेंट स्टोन है, रेतीला पत्थर। और सेंट स्टोन पर कार्विंग करना 1 BC 2100 साल पहले बड़ा डिफिकल्ट काम था। ना आर्टिस्ट पर डिजाइन थे ना मैप थे। आर्टिस्ट को बुद्ध के जीवन की, लाइफ की, जातक स्टोरी, जातक कथाएं, जातक टेल्स बताया। कितने आर्टिस्ट ने, कितने शिल्पी ने काम किया होगा, सबका माइंड एक साथ चलना। ये आर्टिस्ट विदिशा के आइवरी गोल्ड हाथी दंत कारीगर थे। इन्हीं गेटों की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया था, केवल गेट की कार्विंग की बेच पर, ना कि स्तूपा की। गेट पर बुद्ध की लाइफ की जो जातक स्टोरी हैं, जातक कथाएं हैं, जातक का टेल्स हैं। इन जातक स्टोरी में कहीं भी बुद्ध देव का हमको स्टेचू मूर्ति देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस टाइम 2 सेक्टर थे, 2 रास्ते थे हमारे, एक हीनयान पीरियड, एक महायान पीरियड। महायान वाले मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान वाले नहीं। गेट है 1 BC का 2100 ओल्ड। यह हमारे यहाँ स्टेचू वर्शिप नहीं थी। स्टेचू वर्शिप स्टार्ट हुआ 180 कनिष्का से, 2000 साल से। और गेट है 2100 ओल्ड। बुद्ध को कैसे टेली करें? जैसे हमारा ओल्ड टेम्पल, प्राचीन मंदिर, शिव जी की शिवलिंग शिवा का सिंबल है, प्रतीकात्मक रूप है। ऐसे बुद्ध को 4 सिंबल, बोधिक ट्री जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, एलाइटमेंट हुआ, बोध गया, पीपल का वृक्ष, अम्ब्रेला, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है। स्तूपा का डिजाइन बना, स्तूप मतलब बुद्ध है। एक स्टोन का ये हाफ पीस, इसको प्लेटफार्म कहते हैं। क्यों? हम लोग घर में आसनी बिछा के प्रेयर करते हैं, बुद्ध ने फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन पर बैठकर प्रेयर किया, उसको प्लेटफार्म कहा गया। स्टार्टिंग हम नॉर्दर्न गेट से करते हैं जी। ये बिग एलिफेंट जिनके दांतों के होल्स हैं, यहाँ ओरिजिनल आइवरी था। किसने निकाला, कब निकाला, नो एविडेंस। एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं, उसको महाबत कहा जाता है, माहूत। यहाँ फीमेल माहूत है, वहाँ मेल माहूत है। 1 BC में लेडीज़ को जेंट्स के बराबर का, समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, कौन सा न्यू बात है? 2100 ईयर्स पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है, इसलिए बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। अब गेट की साइड में ये है ईस्टर्न गेट पर बुद्ध का स्टेचू। ये भी 5 AD गुप्त काल का है, परंतु ये स्टेचू जो है गांधार आर्ट स्कूल, बुद्ध का हेयर स्टाइल, कारगिल घुंघराले बाल, इसका भी हेड कटिंग किया हुआ था, मिला जोड़ किया आर्कियोलॉजिकल ने। अपना अनुमान करेक्ट है, कटिंग किया, डैमेज नहीं किया गया। अब मान के चलते हम बुद्ध का हेड नहीं होता स्टेचू में, तो कैसे टेली करते? गांधारा स्टेचू है, बहुत ईजी। गांधार में ये लाइनिंग्स बुद्ध के चेस्ट पर हमको ऐसे मिलेगा, मथुरा स्टाइल में लाइनिंग हमको स्ट्रेट मिलेगा। गांधार में कपड़ों को, वस्त्रों को ऐसे ओढ़ा जाता है। इंडियन कल्चर सीधा स्ट्रेट और इजी बना दे। लेडीज़ चुंदरी ओढ़ती है, गांधार है, साड़ी बांधती है, हमारा भारतीय कल्चर इंडियन आर्ट्स है, मथुरा आर्ट्स है। इससे हम डिफरेंस कर लेंगे आसानी से, गांधार और मथुरा को अपन टेली कर लेंगे। हम आते हैं अब ईस्टर्न गेट की साइड में। हमने अभी आपको बताया था कि जो रेलिंग हमारा जो है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में है। देखिए दोनों स्टोन होल करके फंसे हुए हैं। ये आयरन का सपोर्ट आर्कियोलॉजिकल ने डाला, ये पीस डैमेज हुआ। ये सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है, सारा स्टोन आपस में कनेक्ट है जी। ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम।
जैसे काठ से बनाया बिल्कुल जाता है। काठ से बनाया है, क्योंकि बाम्बू का था, वुडन का रेलिंग था अशोका के पीरियड में। आज भी जब खाट उट बनाया जाता है तो आज भी इंटरलॉकिंग, वही हम खाट बनाते हैं, या घर का लकड़ी का चौखट जिसमें दरवाजा हाँ, लगाते हैं, सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम में ही system। बनाया जाता है, क्योंकि ये वुडन का लकड़ी का ही तो डिजाइन है, और लकड़ी का ही पहले हमारा रेलिंग बाउंड्री हुआ करता था। अब हम आते हैं ईस्टर्न गेट साइट में। हम ईस्टर्न गेट पर बुद्ध की मदर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग बिग एलिफेंट। एलिफेंट के थोड़ा टॉप पर ऊपर जाएंगे हम लोग, एक लेडीज महल में प्लेस में लेटा हुआ है। लेडीज का हेड हमारी साइड है। लेडीज के पैरों के ऊपर स्मॉल एलिफेंट। एलिफेंट का पैरों का डायरेक्शन ऐसा लग रहा है ईयर में उड़ता हुआ आ रहा है। ये कार्नर पर हॉर्स घोड़े प्लेस से बाहर आता हुआ। ये बुद्ध का मदर है। महामाया महल में सो रहा था। नाइट में, रात्रि में ड्रीम सपना हुआ। आकाश से वाइट एलिफेंट एंड हॉर्स इनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। मॉर्निंग सुबह अपने हस्बैंड पति शुद्धोधन के कान में बताया। शुद्धोधन ने सपने को प्लेस में सुनाया। तब उनका राजगुरु ने काफी विचार विमर्श के बाद एक भविष्यवाणी किया। किसी महान व्यक्ति का जन्म होना है, या तो किंग बनेगा या साधु। किस बेच पर? वाइट एलिफेंट होता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए, घोड़ा होता है त्याग के लिए। उसी सपने का लेडीज़ों को बालकनी में बातें। लेडीज़ का आदमी कुछ कहता है सेकंड एक्शन। ऐसा नेचर लेडीज़ों में पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है। काना फूसी ये चलता रहेगा। उसी सपने का खुशी फेस्टिवल का उत्सव का तैयारी करते प्रेजेंट दिखाया। ये अपना गेट कीपर है। अब हम टर्न करते हैं ईस्टर्न गेट के बैक साइड के लिए। टॉप का पैनल देखेंगे हम लोग बोध गया। बोध गया में बुद्ध के आने से पहले बुद्ध के वेलकम के लिए तैयारी करते हुए। बुद्ध कहाँ हैं हम देखेंगे पैनल में। मिडिल में देखो प्लेटफार्म पर अम्ब्रेला है जी। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, सिंबोलाइज। विलेज गांव कैसे समझे हम लोग। नीचे कार्नर पर तालाब है, लोटस है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। ऊपर टॉप पर लेडीज ओखली में कूट रही है। उसके नीचे सूपे से लेडीज फटक रही है। ऊपर देखो लेडीज मसाले को पीस रही है। कार्नर पर कपल्स बातें कर रहे हैं। इस कार्नर पे आई है लेडीज मटकी में पानी लेने आई, पानी को लेके जा रही। देखो वर्कर्स काम पे जा रहे हैं। दोनों लेडीजें बालकनी बातें कर रही हैं। ऊपर किसान खेत पे जा रहा है। उसका लाठी में उसका कपड़ा, झोला है। लाठी में कपड़ा बना है। कपड़े में उसका लंच बना हुआ है, खाना बना हुआ है। पूरा विलेज दिखा दिया, गांव दिखा दिया एक छोटे से स्मॉल पैनल में। सेकंड पैनल बोध गया का फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर। फायर टेम्पल कैसे देखें, यहाँ देखेंगे अग्नि को। टेम्पल के विंडो में से ज्वालाएं निकल रही हैं। इसके अंदर विशिला नाग कोबरा है। कोबरा कैसे आया? बुद्ध के टाइम पर 3 साधु था, 3 ऋषि था। नंदी कश्यप, उर्वेला कश्यप, गया कश्यप। तीनों ब्रदर इतना अपने आप में प्राउड घमंड, हमसे बड़ा नॉलेज वाला नहीं। तीनों बुद्ध से नफरत करता था। ये उर्वेला कश्यप, इनको पता था बुद्ध मॉर्निंग में टेंपल में एंट्री करेगा, बैठकर टीचिंग देगा। नाइट में कोबरा छोड़ दिया। बुद्ध एंट्री करे, काट ले, बुद्ध एक्सपायर हो जाए। परंतु बुद्ध था। बुद्ध ने अपने तपोबल से कोबरा को कमंडल में बंद किया, फॉरेस्ट छोड़ा, टेंपल ओपन कराया। परंतु ये लोग कौन हैं जिनका देखो पगड़ी है, दाढ़ी है, ड्रेस अलग है। और अग्नि फायर टेंपल का प्रेयर कौन करता था? अग्नि मंदिर की पूजा कौन, किस कास्ट का लोग करते थे? पर्शियन। ये पारसी हैं। और पर्शियन कहाँ से आया हमारे यहाँ? यूनान लगा हुआ है अफगानिस्तान से। अब यूनान से अफगानिस्तान एंट्री किया, ये पर्शियन है। जब टेंपल ओपन हुआ, वहाँ का पब्लिक को बहुत खुशी हुआ। यज्ञ करने का तैयारी किया। यज्ञ यहाँ देखेंगे मेन को, हाथ में लोहे का टूल्स है। सेकेंड फेस लकड़ी कटिंग कर रहा है, नहीं कटती। अग्नि जला रहा है, नहीं जलता। बेड को उठा रहा है, नहीं उठता। क्यों? क्योंकि स्तूप मतलब बुद्ध, इन्होंने बुद्ध से यज्ञ करने का परमिशन नहीं लिया। यज्ञ असफल होता है। और बुद्ध एक कर्मकांड में विश्वास नहीं करता था, वो इनको परमिशन नहीं देते। यज्ञ असफल हो जाता, सफल नहीं हो पाता। अब आएंगे हम लोग ईस्टर्न गेट के बिल्कुल फ्रंट में, सामने साइड।
ये बोधि ट्री जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, एलाइटमेंट हुआ, बोध गया पीपल का वृक्ष। ये बोध गया का निरंजना रिवर्स, निरंजना नदी, जिसमें कोकोडाइल्स है, डक्स है, डस्ट फिश मछली को पकड़ा। मैंगो ट्री, मंकी ने मैंगो तोड़ा, सेकंड हैंड से देखो खा रहा है। कितना फाइन आर्ट्स, फाइन कार्बिन है इसमें। ये सेकंड ब्रदर नंदी कश्यप बोटिंग कर रहे हैं, नौका बिहार। अचानक रिवर्स में नदी में फ्लड, बाढ़ आ गया, बोट फंस गया। अपना हेल्प के लिए आवाज़ लगाते हैं, मुझे बचाओ। पानी पे कौन चल सकता है? महान ईश्वर या महान साधु। प्लेटफॉर्म इन बुद्ध रिवर्स पे नदी पे चलता हुआ हेल्प करते हैं। तब नंदी कश्यप इन लोगों से पूछते कौन है? कहले बुद्ध हैं। झुककर नमस्कार किया, इनका घमंड टूट जाता है, बुद्ध का शिष्य बनता है। इंसान को लाइफ में घमंड नहीं करना चाहिए। नीचे देखेंगे सम्राट अशोक अपनी वाइफ पत्नी देवी के साथ चैरिट रथ पर प्लेस से बाहर आते हुए। इसको राजा कैसे कहें? क्योंकि उसके ऊपर अम्ब्रेला है, रोयल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है, कुछ बजाने वाला वाद्य यंत्र। अशोक कहाँ जा रहे हैं? अशोक पहुँचे बोधि ट्री है बोध गया। कलिंग वार के बाद जब अशोक ने बोधिज्म को एक्सेप्ट किया, अपनाया था, पहली यात्रा अशोका ने बोध गया का किया था जी। अब हम देखते हैं अम्रपाली के बारे में। भगवान बुद्ध के टाइम पर 5 BC में 2500 ईयर्स पहले मगध का किंग राजा कौन था? बिम्बिसार का बेटा कौन हुआ? अजातशत्रु। बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म पर बिग मीटिंग बुलाई, काउंसिल। बेटा नाराज, पिता को जेल में डाला, उसका मर्डर किया, हत्या किया। राजगद्दी पे अजातशत्रु बैठा। उस टाइम वैशाली बिहार, वैशाली का नगर बधू था अम्रपाली, बिग डांसर, बहुत बड़ी वेश्या। अजातशत्रु ने अम्रपाली को बोला बुद्ध का समाधि डिस्टर्ब करो। कई प्रयास किया परंतु अम्रपाली बुद्ध का समाधि डिस्टर्ब नहीं कर पाया। बुद्ध के टीचिंग से अम्रपाली का माइंड चेंज हुआ। अब बुद्ध का फर्स्ट लेडीज शिष्य जो बनी वो अम्रपाली बनी। यहीं से लेडीज़ का एंट्री बोधिज्म में हुआ। तो हम देखते हैं अब अम्रपाली के लिए बहुत ब्यूटीफुल स्टेचू अम्रपाली। कार्नर का जो स्टेचू है लेडीज़ वाला आम्रपाली मैंगो का ट्री है जिसको हैंड में पकड़े हुए है। गले में नेकलेस है, हैंड में बैंगल चूड़ी, पैरों में रिंग। देखने में नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। कपड़े को पहने, वस्त्र को पहने। कौन सा वस्त्र? बांग्लादेश में ढाका में कपड़ा बनता था मसलिन। एक अंगूठी के रिंग से निकाल दे, उसका 9-10 मीटर का साड़ी। वो साड़ी जो लेडीज़ पहनता है हमारा महाराष्ट्र में, पीछे से जो बांधा जाता है, काष्टा का छोटा लोंग वाली। आते हैं हम उसको देखते, साड़ी का कल्चर, पहनने का तरीका देखते हैं इसका जी। हम रिटर्न देखेंगे स्टेचू को। ये देखिए अपना महाराष्ट्रीयन साड़ी है, काष्टा का छोटा लोंग वाला। अब स्टेचू का हेयर स्टाइल चेक करते हैं अपन। जो हेयर स्टाइल लेडीज़ का आज चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, लेजर कट। कौन सा न्यू फैशन है? ओल्ड इज गोल्ड। लौट के रिवर्स हुआ 2100 प्राचीन हेयर स्टाइल। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा की केव्स में, गुफाओं में 2nd BC और 3 BC का हेयर स्टाइल है। सारा फैशन अपना रिपीट हो रहा है, कोई न्यू फैशन नहीं है। हमारे साइड में जितने स्मॉल बिग डोम है, स्तूपा हैं, ये मॉन्क साधु सन्यासियों की समाधियां हैं। जो लोग यहाँ रहते थे उस टाइम स्टडी करते थे, उसमें जो एक्सपायर हो जाता उनकी बॉडी को इन्हीं प्लेस पर जलाकर डोम बना दिए जाते। स्मॉल बिग है, छोटा बड़ा स्तूपा है, वो सीनेटी होती है। और सीनेटी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एज का नहीं, एजुकेशन नॉलेज का होता है। जिसको हायर एजुकेशन उसको बिग है, जिसको कम उसका स्मॉल है। अब क्लोथ बंद कर लो। अपने देश में भारत में टोटल अशोक स्तंभ हैं 84 अशोका पिलर है भारत के अंदर। 84 अशोक पिलर में से आज हम आपको कुछ अशोक पिलर के नेम बताते हैं। पहला अशोक पिलर, फर्स्ट अशोका स्तंभ सारनाथ बनारस में है, यहाँ से नेशनल सिंबल लिया हमारा। सेकेंड अशोक पिलर इलाहाबाद कौशाम्बी में लगा हुआ है। थर्ड अशोका पिलर फिरोजला कोटला दिल्ली में है। 4 भी दिल्ली में था, गर्ल्स कॉलेज के पास डैमेज हुआ।
एक चला गया शहबाज गढ़ी पेशर, पाकिस्तान के अंदर देश का बंटवारा हो गया। एक हमारा धौलागिरी उड़ीसा केसरिया स्तूपा के पास, एक बेंगलोर में अशोका पिलर है, चेन्नई में अशोक पिलर है एंड सांची में अशोका पिलर है। इस अशोक पिलर का जो हाइट था 42 फीट का सिंगल रॉक कट, 42 फीट का सिंगल रॉक कट, टॉपर कैपिटल थे हेड, 4 लाइन कैपिटल जो नीचे डाउन संग्रहालय, इसको डैमेज कराया इसी सांची के लोकल जमींदार ने। क्यों डैमेज किया? नो एविडेंस, परंतु लोकल विलेज के लोग स्टोरी पे स्टोरी पे स्टोरी बताया। लोकल जमींदार ने डैमेज कराया, 1 पीस को लेके गया शुगर मिल में, गन्ने का जूस को निकालने के लिए जूसर मशीन में यूज किया ग्लाइंडर के रूप में। ये वाला पत्थर से ये बात कितना राइट और रॉन्ग है वो अपन नहीं कह सकते। इसी का 2 ब्रोकन पीसेस डैमेज पार्ट्स जस्ट हमारे साइड में रखा हुआ है सेट के अंदर। ये अशोका पिलर के ही डैमेज पीसेस हैं जो सेट में हैं। पिलर के सेंटर में कुछ रूल्स लिखा है, कुछ नियम लिखा हुआ है। क्या नियम है? कोई भी बौद्ध भिक्खु या भिक्षुनी, लेडीज या जेंट्स, इस संघ भेद के नियम को तोड़ते पाए जाते हो, आपको निष्कासित मीन निकाल दिया जाएगा संघ से बाहर। इसलिए अशोक पिलर को साउथ गेट के राइट साइड लगाया। क्यों लगाया? ये साउथ गेट, सदर्न गेट, हमारा ये मेन गेट था, सदर्न गेट था, एंट्रेंस गेट था। वो रूट नहीं जिससे हम लोग ऊपर आए, वो 1952 में बनाया। प्राचीन रूट सीधा ये फॉरेस्ट से डाउन में जाता है। मेन गेट से कोई मॉन्क्स एंट्री करेगा परिक्रमा लगाने के लिए, सीधी नज़र राइट साइड नोटिस पर आना चाहिए। क्या रूल्स है जिसमें हमको पालन करना है, फॉलो हमें करना है। अब हम देखते हैं पीछे बैक साइड में मीटिंग हॉल, कम्युनिकेशन हॉल, दीक्षा स्थल 3 BC 2300 ओल्ड अशोका के पीरियड का। इस पर वुडन का लकड़ी की छत थी जो आग लगने से डैमेज हुआ। इसका आर्किटेक्चर पहचाने ग्रीक, जैसे कि एथेंस में होते हैं कालम, ग्रीक आया अलेक्जेंडर सिकंदर से, इंडो ग्रीक रिलेशन हुआ, काफ़ी आर्टिस्ट बुलाया अशोका ने। हमारे यहाँ मंदिर बनना स्टार्ट हुए कनिष्का से 180 2000 से, परंतु इंडिया का गोल्डन पीरियड गुप्त काल, गुप्ता पीरियड का, गुप्ता डायनेस्टी का फर्स्ट टेम्पल इंडिया का 5 AD मीन्स 1500 ओल्ड, पहला मंदिर भारत का। ये सामने बना सांची, कोई आर्किटेक्चर नहीं, बिल्कुल फ्लैट रूम बनाया, गेट लगाया, बरांडा लगाया। इसके इनसाइड अंदर बुद्ध का स्टेचू था, वो संग्रहालय में है। डायनेस्टियाँ कैसे पहचानेंगे? पिलर के सेंटर में इन्वर्टस, पिलर के सेंटर में इन्वर्टस लोटस, उल्टा कमल, ये गुप्त काल का सिंबल है। ये सिंबल दिल्ली के कुतुब मीनार के मेहरौली के आयरन पिलर पर है। दिल्ली का मेहरौली का आयरन पिलर 4 AD गुप्त काल का है। को उसके टॉप पर बना ईगल, और ईगल होता है लॉर्ड विष्णु का सिंबल। वो गरुड़ स्तंभ है मेहरौली वाला, जिसको कई लोग अशोका पिलर समझते हैं जी। साउथ गेट के पास है हम लोग। साउथ गेट के हम मिडिल पैनल, सेंटर पैनल को देखेंगे। मिडिल पैनल पर एक स्तूपा बना हुआ है। उस स्तूप पर पाली लैंग्वेज में लिखा है राम ग्राम स्तूप। राम ग्राम है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर। स्तूप के राइट साइड सम्राट अशोक चेरिट पर है, रथ पर है, और स्तूपा का प्रेयर करने जा रहे हैं। सेकंड साइड स्तूप के झुककर नमस्कार कर रहे हैं। अपर पैनल बोने पाइप को पकड़े हैं, पाइप नहीं है, बजाने वाला वाद्य यंत्र है। दक्षिण भारत में बजाते हैं विशेष फेस्टिवल पर। नादेश्रम है, और नादेश्रम क्यों दिखाया? क्योंकि गेट को बनवाने रूलर आंध्रा के थे, उन्होंने अपना सिंबल डाला। ये कैपिटल 4 सिंह लिए गए हमारे अशोक के सारनाथ से। कैपिटल के नीचे देखेंगे हम लोग, कैपिटल के नीचे देखेंगे बील बना है, धर्म चक्र, धर्म परिवर्तन। चक्र के टॉप पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध, सिंबोलाइज
नीचे वन पिलर, पिलर के लेफ्ट एंड राइट डियर बने हैं। इंडिया में डियर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? बिग डियर पार्क भारत का सारनाथ बनारस। डियर प्रेजेंट दिखा रहा है प्लेस को, व्हील रिलीजन को, अम्ब्रेला बुद्ध को, तीनों को प्लस करें मीनिंग बनेगा। बुद्ध को सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग देते प्रेजेंट, पहला सरमन बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। वाकी स्टोन प्लेन है, तो साउथ और वेस्टर्न गेट गिरकर डैमेज हुआ, इनको रिस्टोर किया मार्शल ने 1912 में। तो ये प्लेन जितना पीसेस है स्टोन है, ये ओरिजिनल पार्ट्स इसका नहीं है, ये रिस्टोर किया गया गेट है साउथ एंड वेस्टर्न। हम जो स्तूपा का जो साइड देख रहे हैं, ये साउथ गेट से लेकर पूरा वेस्टर्न गेट का ये पूरा पोर्शन स्तूपा का, यहाँ से गोल्ड के लिए यहाँ से डिग किया था, तोड़ा था इसको, ये रिस्टोर किया गया पोर्शन है 1912 में। सर जॉन मार्शल ने इसको रिस्टोर कराया, तो जो ओरिजिनल स्टोन नहीं है, ये रिस्टोर किया गया पोर्शन है। सामने हम लोग देख रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएँ, माउंटेन, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विंध्याचल रेंज है। इसका स्टार्टिंग उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, एंडिंग होता है भोपाल से होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, बीच में नर्मदा रिवर्स पचमढ़ी सतपुड़ा में। ये इंडिया को 2 डायरेक्शन में डिवाइडेड करती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के अंदर ये डिवाइडेड। सबसे बिग रेंज है विंध्याचल का। वेस्टर्न साइड पर हैं, वेस्टर्न गेट के सामने खड़े हुए हैं, जो हमारा लास्ट गेट है स्तूपा का। हम वेस्टर्न गेट के सेंटर पैनल पर देखेंगे व्हील बना है, धर्म चक्र है, धर्म चक्र के टॉप पर अम्ब्रेला था, डैमेज हो चुका है। चक्र के लेफ्ट एंड राइट में डियर है। यहाँ सेकेंड बार रिपीट किया गया बुद्ध को फर्स्ट टीचिंग सारनाथ बनारस। अपर पैनल बुद्ध ट्री, एलिफेंट को बुद्ध का ट्री के रूप में प्रेयर। ये छोटे छोटे मोटे मोटे यक्ष, आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको यक्ष कहा जाता है, परंतु हम लोग इसको सरल भाषा में बोलना चाहें कह सकते हैं यक्ष मतलब अपना शेडो होता है, अपना परछाई होता है, अपना प्रतिबिंब होता है। इनका चारों का फेस कट चेक करेंगे, बिल्कुल डिफरेंस है। ये कार्नर वाला रो रहा है, ये हंस रहा है, वो साले शांत खड़ा है, वो स्माइलिंग मुस्कुरा रहा है। ये अपना हैंड पर बेड को, भार को, वजन को उठा रहा है, एक रोते हुए, एक हंसते हुए, मुस्कुराता हुआ। ये हमारा लाइफ को प्रेजेंट करता है। बुद्ध देव ने बताया हर इंसान का फैमिली का वेट, भार, वजन बराबर है, कैसे उठाना, कैसे चलाना, ये हम पर निर्भर करता है। चाहे रो के उठा लो, चाहे हंस कर, चाहे मुस्कुरा कर, चाहे सोच उठाना पड़ेगा। अपन इसको यक्ष कहते हैं। चाइना लेके गया सांची से, रिटर्न किया चाइना ने इंडिया के मार्केट में, हैप्पी मैन और लाफिंग बुद्धा बनाकर। मार्केट में शॉपिंग सेंटर वाले 10 रुपीज़ के लाफिंग को 100 में बेचते हैं। कहते हैं लकी होता है, मनी आता है, पैसा आता है, कुछ नहीं आता। आइटम हमारा है, माइंड चाइना का है, मनी कमाता है चाइना, क्योंकि हमारे देश में अंधविश्वास सबसे ज़्यादा है। ये स्तूपा नंबर 3 2nd सेंचुरी BC सुंग डायनेस्टी, ये डैमेज हुआ, इसको रिस्टोर किया मार्शल ने 1912 में। इसके इनसाइड अंदर बुद्ध के फेमस डिसाइपल 2 प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मोद गलियाना का बॉडी का बोन पीस अस्थियां रखा हुआ है। वो आउटसाइड में जो टेंपल हमको दिखाई दे रहा है वो न्यू टेंपल है 1952 का। उसका ओपनिंग किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू 30 नवंबर 1952। उसके लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू ऑफ प्रेयर के लिए। उस टेंपल का मेंटेनेंस करती है श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका। अब हम चलते हैं मोनास्ट्री की साइड में, बिहार की साइड में। ये हम लोग मोनास्ट्रियाँ देख रहे हैं 3 BC की, 2300 ओल्ड। जिस मोनास्ट्री को हम लोग कह सकते हैं छात्रावास, बोर्डिंग स्कूल, रूम में रहना, ग्राउंड में स्टडी करना, ये ओरिजिनल मोनास्ट्री है शोक के टाइम का। ये पूरा मिट्टी में, ज़मीन में दबा हुआ था। 1936 हनीम मोहम्मद कुरैशी ने, जो आर्कोलिस्ट थे, एक्सीबिशन में खुदाई में ओपन कराया। इसका हाइट था 7 फीट, डैमेज हुआ। इसके ऊपर टॉप पर वुडन का, लकड़ी का छत हुआ करता था।
इसी मोनास्ट्री से, इसी एजुकेशन सेंटर से, इसी शिक्षा केंद्र से अशोक का बेटन बेटी, सन एंड डॉटर महेंद्र संघ मित्रा बौद्धिज्म की नॉलेज को, ज्ञान को लेकर श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए। मोनास्ट्री का पीछे का बैक साइड का बाउंड्री वॉल हमको दिखाई दे रहा है। बाउंड्री वॉल के पीछे ट्री के नीचे सेंटर में देखो एक बेगिंग बाउल रखा है स्टोन का, रेलिंग के सेंटर में वो है भिक्षा पात्र। आसपास के विलेज के लोग खाने का आइटम ला के छोड़ते थे, मोंग साधु निकाल कर यूज करता था। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पीने के बारिश के पानी को इसमें कलेक्ट किया जाता था अशोक के टाइम का। इसका स्टोन कटिंग किया, मोनास्ट्री में यूज किया, टैंक बन गया। ये साइड का रास्ता रूट पार्थ पे 200 मीटर डाउन जाता है पहाड़ी के नीचे, स्तू नंबर 2 के लिए। वो भी सेकेंड बीसी सुंग पीरियड का है, वो भी डैमेज हुआ, उसको रिस्टोर कराया मार्शल ने 1912 में। उसके अंदर 10 टीचर टीचिंग यहाँ करते थे, धर्म आचार, उनका बॉडी का पार्ट्स अस्थियाँ रखा हुआ है। सांची का जो प्राचीन नेम रहा, सांची का जो प्राचीन नेम रहा शांतिगिरी, बेदिसगिरी, श्री पर्वत था। सांची आज पड़ा इसका नाम सांची, और सांची मतलब होता है सच। तो ये सांची का एक स्मॉल हिस्ट्री था। यहाँ मेरा काम एंड होता है। मैं सुरेंद्र सिंह भदौरिया, नमस्ते जी। সো বন্ধুরা, 200 টাকার নোটে যেই ফটোটা আছে দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সাচি স্তূপার ফটো। তো আমি সেই স্থানে এসে দাঁড়িয়ে আছি, এটা সেই জায়গা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন ভালো করে। তো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, ও বন্ধুদের মাঝে শেয়ারও করে দেবেন। তো আজকের মতো আমার এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, চলুন।